Hello everyone. So yesterday on 22nd of December 2020, government issued a notification, that is notification number 94 2020 under central tax. Okay, and this particular notification is a point of debate, point of talk all over the social media and in different groups. And the main point of discussion is Rule 86B. Okay, so we'll be taking up Rule 86B critically, but before that I just want to give a explanation in a line or two for all the points given in this particular notification. Okay, so let us see one by one. First of all, the notification says about the registration under GST. Some changes has been made under registration under GST. Like previously, few months back also, Aadhaar authentication was implemented, but now they are focusing on biometric verification. Not only Aadhaar authentication, but it should be biometric verification. Okay, and if you can't do biometric verification, you have to submit KYC and all biometric information to the department. And the other thing that has been done previously, the time period was 3 days. If you do Aadhaar authentication, within 3 days you are supposed to get registration or deficiency memo. But currently that has been increased to 7 days. So again, this is a step back from ease of doing business, because almost the time has been more than doubled. Again, if you have not done Aadhaar authentication, previously time period was 21 days. Within 21 days officer can grant you registration or can issue some deficiency memo. But again now that time has been increased to 30 days. So basically time has been increased. Okay, so ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, but main point है इस notification में 86B जो भी हम लोग देखेंगे. Now the next point of discussion, the next point that included in notification was regarding cancellation of registration. 3 more grounds has been added in the law on which proper officer can cancel your registration. What are these 3 grounds? Number 1 ground is if any registered person takes ITC in contravention of section 16. But this was actually needed. Fine. There are lots of criticism all over the social media regarding these, but we have to understand कि भाई ये सब क्यों है. All these are because to curb the fake invoices. जो भी fake invoices का रैकेट चल रहा है उसको कर्ब करने के लिए, if any person is taking any input tax credit in contravention of section 16, his registration can get cancelled. Okay, the second point and a very interesting one, you declare output tax liability in GSTR1 and pay through GSTR 3B. So actual tax payment is through GSTR 3B. Suppose if you are declaring in GSTR1 more and paying less, that can also be a ground for cancelling registration. Basically this is happening because many those who are issuing fake invoices, they are issuing fake invoices and showing in GSTR1 and they are just filing 3B by showing lower liability. भाई कोई भी सामने वाला रेसिपिएंट पोर्टल पे क्या देखेगा, भाई मेरा इनवॉइस आ रहा है GSTR1 में और सामने वाले बंदे ने 3B फाइल कर दिया है, बट उसने 3B में क्या अमाउंट डाला है नो वन नोज. सो दैट्स व्हाई दे हैव पुट दिस पॉइंट फॉर एज अ ग्राउंड फॉर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन. भाई आप GSTR1 में ज्यादा डालोगे, टैक्स कम पे करोगे, दैट कैन बी a ground for cancelling registration. But in the middle of the year this is very difficult to implement, because as per the initial circular when GST was implemented, we can rectify our errors cumulatively. There is a possibility in first 6 months we have paid more amount in 3B, then definitely we'll rectify that in the current month or the next month by paying lower tax in GSTR 3B. Okay, so this will be very difficult to implement, and especially if you read the lines, what is written over here, in case of outward supply declared in GSTR1 for one or more tax period. भाई आप सिंगल टैक्स पीरियड में कम बेसी हो सकता है. एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड हैव बीन क्यूमुलेटिवली. भाई सपोज 9 months 10 months का क्यूमुलेटिवली देखते देन इट मेक्स सम सेंस. बट अगेन ये भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज प्रीवियस ईयर की कोई एरर्स अगर करंट ईयर में ठीक कर रहे हैं 3B तो उसके कारण मिसमैच आता. सो दिस विल बी वेरी चैलेंजिंग. बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप GSTR1 में ज्यादा डिस्क्लोज करिए 3B में कम तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा. प्रॉपर ऑफिसर विल लिसन योर आर्ग्यूमेंट. आपका अपना क्या बात है वो डेफिनेटली सुनेगा. तो इस पॉइंट पे कैंसिल होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इंप्लीमेंट करना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा. बट ग्रेजुअली एज वी कैन सी
कि फर्स्ट वी हैव टू फाइल GSTR1 फ्रॉम देयर लायबिलिटी विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B, जो कि स्टार्ट भी हो गया. वंस दैट इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, तब इस प्रोविजन का परफेक्ट यूज हो पाएगा and it can be implemented properly, and I feel this can be done from next year. अभी start हो गया, but proper implementation इसका next year से होगा. And again the very debatable point and the top point of the day is if anyone violates the provision of rule 86B, then also his registration is liable to get cancelled. We'll discuss in detail rule 86B. So on these grounds, on these additional grounds notified yesterday, your registration can get cancelled. Now there is also a provision of suspension of registration, and very interesting point over here is if there is any significant differences or anomalies. Now what do we mean by significant? Again, this is very subjective, it is very vague. भाई अपने को क्या पता significant क्या? Time will say significant क्या है. Like previously in rule 36(4) there was mentioned 20%, 10%, so we considered that 10 or 20% के beyond होगा, that is significant. But here nothing is mentioned, they have just used the word significant, and this is very subjective. So again it will be very difficult. by 3B1 or 2A 2B में कोई भी significant difference होगा, we don't know what do they actually mean by significant, or we can wait for some circular or clarification from government, or time will say what do we mean by significant. Now the next change is in return filing under GST. If you are filing GSTR1 और IFF, जो कि नया मॉडल में जनवरी से इंप्लीमेंट हो रहा है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन जो मंथली ऑप्ट किया रिटर्न फाइलिंग का, उसने अगर 2 3B जमा नहीं किए तो फिर उसको GSTR1 लगाना अलाउड नहीं होगा. इफ ही फेल्ड टू फाइल 2 consecutive 3B, उसको आगे GSTR1 लगाने नहीं दिया जाएगा, या फिर IFF में उसको अपलोड करने नहीं दिया जाएगा. IFF में, सॉरी. But suppose if anyone is filing GSTR1 quarterly, in that case they have said tax period. Tax period means for them the tax period is 3 months. Okay, तो 3 months का अगर 3B नहीं लगाएंगे तो उनको GSTR1 लगाने नहीं मिलेगा. But again here they have also mentioned those who have restricted to use ITC up to 99%, this will discuss in rule 86B. तो अभी मैं इस पॉइंट को नहीं बोल रहा हूं. इस केस में भी कोई एक टैक्स पीरियड का अगर रिटर्न 3B फाइल नहीं करता है तो दे विल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR1, उनको GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा. बेसिकली दे आर रिस्ट्रिक्टिंग टू फाइल GSTR because what happens, many recipient just ask to file our GSTR1 because so that they can see their input in GSTR 2A and 2B, so that accordingly they can claim the input. तो यहां पे restriction लग जाएगा, GSTR1 आपको फाइल ही नहीं करने दिया जाएगा. Okay, so these are some changes in return. Now the next point is regarding e-waybill validity. Previously e-waybill का validity was for 100 kilometer 1 day, and now it has been increased to 200 kilometer 1 day. Basically again this has been done because we have noticed कि many supplier what they are doing, they are generating one waybill and उसमें 2 चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर का है भाई, ठीक है, तो उसमें 2 चक्कर ले जाते हैं. लेकिन अब क्या हो गया, 1 डे में 200 किलोमीटर तक का होगा. Then things will get little difficult, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि सिंगल waybill को मल्टीपल टाइम्स यूज करना. प्रीवियसली बिकॉज 1 डे 100 किलोमीटर, एक दिन में कोई भी ट्रक आराम से 400-500 किलोमीटर चल सकती है इन 24 आवर्स इवन आफ्टर टेकिंग रेस्ट. तो सिंगल waybill was possible to use multiple times, लेकिन अब 200 किलोमीटर 1 डे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. स्टिल 2 बार यूज किया था, बट स्टिल things will become little difficult. That's why they have changed this e-waybill का validity time. Fine. So next we come rule 36(4). This is also a top point. By 36(4) में now the restriction of additional ITC whatever is being displayed or shown in 2B, आप उससे एक्स्ट्रा पहले 10% ले सकते थे. Now that has been restricted to 5%. Try to understand the point. It has logic. भाई बेसिकली ये 10% का एक्स्ट्रा अलाउंस क्यों दे रहे थे? मेनली वाज बिकॉज देयर वर सम क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स, तो उनका तो वो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे, तो मंथली अगर वो फाइल नहीं करेंगे तो कुछ इनपुट हो सकता है आपके रिटर्न्स में नहीं आएगा, 2B में नहीं आएगा. दैट्स व्हाई दे गेव द अलाउंस ऑफ 10%. बट नाउ फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स
दे कैन ऑल्सो अपलोड इनवॉइसेज अंडर IFF। भाई मंथली भी वो लोग B2B इनवॉइसेज अपलोड कर सकते हैं, इवन इफ दे आर फाइलिंग द रिटर्न्स क्वार्टरली। तो अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करे तो डेफिनेटली दे कैन अपलोड इनवॉइसेज मंथली ऑल्सो। तो भाई वो जो 10% का गैप है, यू विल नॉट रिक्वायर दैट 10%, तो इसीलिए 5% एक्स्ट्रा लाओ किया। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, दे आर गिविंग यू whatever is being shown in 2B, ideally the whole input should have been shown in come in 2B, but नहीं आता तो even you can take 5% extra। पहले 10% एक्स्ट्रा दे रहे थे, लेकिन अब 5% एक्स्ट्रा दे रहे, क्योंकि क्वार्टरली फाइलर्स भी अब मंथली B2B इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। सो दिस मेक्स सेंस, जो उन्होंने 5% रिड्यूस किया, डेफिनेटली दिस मेक्स सेंस। बट देखिए हर चीज का कुछ प्रॉज एंड कॉन्स रहेगा, देयर विल बी क्रिटिसिज्म, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव behind all these। okay, now let's come to the most talk of the day, that is rule 86B। इसको लेके बहुत हंगामा है, but try to understand what is the intention behind this and what is being written in rule 36B as a whole। don't just read one line कि ITC से आप केवल 99% पेमेंट कर सकते हैं। what is this? try to read the whole rule, तब आप समझेंगे what is written there in the rule। okay, no doubt there is a restriction, आप आउटपुट टैक्स अप टू 99% ही केवल ITC से पे कर सकते हैं। बट इसमें कुछ और भी बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे सबसे पहले इसमें टैक्सेबल सप्लाई में आपका जो कैलकुलेशन होगा उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड, मतलब एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्लस दिस इज ओनली फॉर दोज जिसका मंथली टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 50 लाख। भाई अगर उनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख को एक्सीड कर रहा है तो डेफिनेटली दे मस्ट बी लार्ज टैक्स पेयर्स। भाई उनका 5 करोड़ के ऊपर ही टर्नओवर होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड एंड क्रिटिकली एग्जामिन द रेस्ट्रिक्शन जिन पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा बिफोर क्रिटिसाइजिंग। भाई दुनिया भर का क्रिटिसिज्म चल रहा है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड किन लोग को अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1, भाई उनको अप्लाई नहीं होगा जो लोग 1 लाख रुपीज से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, या मान लो उनका जो एंटिटी है दैट एंटिटी इज नॉट पेइंग 1 लाख रुपीज का टैक्स, बट द ओनर ऑफ द एंटिटी और की मैनेजमेंट पर्सन, यू कैन से लाइक इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म तो खैर प्रोप्राइटरी होता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर, इन केस ऑफ HUF कर्ता, इन केस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग भी अगर अपने पर्सनल लेवल पे लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स 1 लाख रुपीज से ज्यादा पे करें, देन डेफिनेटली दिस रेस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई टू देम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई आई पर्सनली फील कि दिस होल प्रोविजन इज टू कर्ब फेक ITC को कर्ब करने के लिए। सेकेंड, भाई जिन लोगों ने रिफंड अमाउंट क्लेम किया अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, अगर 1 लाख रुपया का रिफंड उन्होंने लिया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए भी ये अप्लाई नहीं होगा। भाई द रीजन बीइंग, आप पहले ये समझो ना कि ये सिचुएशन आएगी कब कि लोग इस पर्टिकुलर प्रोविजन से हर्ट होंगे। भाई कौन हर्ट होगा? या तो एक्सपोर्टर हर्ट होगा, या फिर जिनका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अप्लाई होता है वो हर्ट होगा, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में तो ऑलरेडी मेरे पास इनपुट बहुत एक्यूमुलेटेड है, तो दे हैव सेफगार्डेड बोथ ऑफ देम। इन्वर्टेड ड्यूटी वाले को भी उन्होंने सेफगार्ड कर दिया स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करके, एक्सपोर्टर को भी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करके उन्होंने सेफगार्ड कर लिया। ओके, वी मूव फर्दर। और किन लोगों को सेफगार्ड किया गया है? भाई इसके अलावा पावर दिया गया ऑफिसर को कि भाई वो ऑफिसर कमिश्नर भी ऑन केस टू केस बेसिस डिसाइड करके ये रिलैक्सेशन दे सकता है। बट बिफोर दैट लेट अस एग्जामिन कि भाई किन लोग को हट करेगा। जैसे मैंने कहा, एक तो एक्सपोर्टर और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले लोग। नेक्स्ट, दोज हु हैव डन ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई इफ एनीवन हैज डन ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिनेटली देयर विल बी लॉट्स ऑफ ITC, but in that case they will be paying through ITC. Why they will pay through cash? But again, if they are doing lots of capital expenditure, they have the logic, they can go to the proper officer. But again, भाई अगर वो ऑफिसर के पास नहीं भी जाएंगे, अगर उनके जो प्रोमोटर्स हैं, करता है या फिर प्रोपराइटर है, whoever, if they are paying higher tax, इनकम टैक्स अगर 1 लाख रुपया दे रहे हैं, which is not a big amount, they will be straight away excluded. वो तो straight away exclude हो रहे हैं। बट ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, देन दैट कैन बी अ इशू। बट वन मोर पॉइंट, इफ यू सी द लास्ट पॉइंट, दे हैव ऑल्सो चेक दिस पॉइंट क्यूमुलेटिवली। सपोज आप सितंबर मंथ का रिटर्न जमा कर रहे हैं,
तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सितंबर मंथ में आपने मान लो ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिवली अप्रैल से लेकर सितंबर तक में अगर आपका कैश पेमेंट 1% आ रहा है टोटल आउटपुट टैक्स का, देन ऑल्सो यू विल बी रिलैक्स, तब भी आप रिलैक्स हो सकते हैं इससे। तो देर आर लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन इन रिस्ट्रिक्शन, सब पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आफ्टर रीडिंग द होल प्रोविजन, सारे प्रोविजन रीड करने का अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे ना, दिस इज बेसिकली कर्ब ओनली ऑन दोज हु आर रनिंग द रैकेट ऑफ फेक इनवॉइसेस। भाई उनके लिए कर्ब है, बाकी कोई के लिए नहीं, बिकॉज लास्ट में कमिश्नर के पास उन्होंने पावर भी दिया है कि ही कैन रिलैक्स ऑन केस टू केस बेसिस, वो रिलैक्स कर सकता है। अगर आप देखोगे इसको प्रॉपर्ली तो यू विल कम टू नो। तो ऐसा नहीं है, देखिए बहुत लोग बोलते हैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, देयर इज अ ह्यूज रैकेट ऑफ फेक इनवॉइसेस एंड रॉन्ग आईटीसी बीइंग गोइंग ऑन। तो भाई अगर उनको कर्ब करना है तो डेफिनेटली देयर कैन बी सम हार्डशिप ऑन द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। इट्स वेरी मच लाइक सपोज इफ देयर इज अ रोड विच इज गोइंग वन वे और मेरा घर एकदम जहां से वन वे स्टार्ट होता है वहीं पे, बट आई कांट गो इन दैट वे, मेरे को चलान कट जाएगा। देन आई कैन आर्ग्यू विद द ऑफिसर, भाई ये तो गलत चीज है, पहले तो मैं स्ट्रेट चल जाता था, अब आपने ऐसा कर लगा, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू गो पूरा घूम के यू टर्न करके राउंड करके आपको आना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिकॉज अगर आपको छोड़ देंगे तो उस कारण से कई लोग और भी छूट जाएंगे ये बोल के कि नहीं मेरा घर भी वहीं पे है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू फेस सम हर्डल्स कि भी बाकी लोगों पे कई चीज रूल्स जहां पे लगेंगे, ऑब्वियसली कुछ लोगों को उसमें दिक्कत होगी, बट वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटेंशन। मैं नहीं बोलता कि इससे दिक्कत नहीं होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन ओनली यू कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन कि ये राइट है कि नहीं है। एंड ऑब्वियसली ग्रेजुअली वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड आवर वेंडर्स, भाई जिनसे हम लोग खरीद रहे हैं उनको भी वही होना पड़ेगा कि दे फाइल द रिटर्न प्रॉपर्ली, नहीं तो आपको उनसे बोल के बिजनेस बंद करना होगा, नहीं कि भाई वी कांट डू द बिजनेस विथ यू, दे हैव टू बी डिसिप्लिन इन कंप्लायंस। भाई ये सारी चीजें क्या हो रही है, दीज आर मेकिंग यू वेरी डिसिप्लिन इन कंप्लायंस। सो ठीक है, देयर इज सम हार्डशिप, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गलत है। नो डाउट कई चीजें हैं जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दैट विल बी ऑलवेज अ टॉक, सबके संग कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा, बट स्टिल ऐसा नहीं कि ये पूरा गलत हो गया या पूरा इलॉजिकल हो गया, इसको आप टोटली अगेंस्ट चल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूल 86B को क्रिटिकली पढ़िए। मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ यू जिन लोग का टोटल आईटीसी से पेमेंट होता है, they will be out of this restriction. I feel that. Okay. So hope you like the video. आप My Tax Port से connected ही रहिए. You can subscribe our channel to get more informative videos. Thank you so much.